Shanti. Was it a good morning? And when you woke up, what was the first thought? Do you remember? Yes, thank you. Wonderful. So this is a first day for both of you. So congratulations. Murli is something that we call as the food for the soul, and it is the direct knowledge from the Supreme Soul. So at this time, all the souls in the world are sitting at the same time with the same consciousness that I'm a student and I'm listening from my Supreme Father. Now I may be an instrument right now to read this Murli, but this belongs to the Supreme Father. It's coming directly from Him. So if the intellect has that faith, then it will process the knowledge in that way accordingly. वैसे ही वो ज्ञान को अनुभव कर पाएगा. नहीं, today is the Sakar Murli. It's Sadguruvar. So in the Murli you'll also hear something about Bhog. So normally in the centers 6 to 7 wherever there is Murli, the Bhog will be prepared and then we offer it and then we start the Murli. So today's date is 14 December 2023. Om Shanti, Bhagdada, Madhuban Singh. I was saying, मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ. माताओं कन्याओं को बाप पूरा कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए. शिव शक्तियाँ बाप का नाम बाला कर सकती हैं. प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तर है, हे कन्याओं, तुम अब कमाल करके दिखाओ. You can do wonders. तुम्हें मम्मा के समान बनना है. अब तुम लोक लाज छोड़ो. So here the word lok laj basically means opinions of the society. Nashto moha bano means become the conqueror of attachments. For example, if your two hands are attached, try imagining your two hands are attached. Are you able to do much work? Likewise, if my mind, मेरा मन attached है किसी वस्तु से, किसी लोगों से, किसी की बातों से, will I be able to achieve much? No. That's why nashta moha. अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा. तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है. रंग बिरंगी माया in the sense the colorful pomp of the world, which feels very nice from outside, but inside it's completely empty. तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे. So basically, what does ईश्वरीय सेवा mean? It means what you get from Baba, because you have directly established your relationship with Baba. So pass it on to others. And spirituality, the laws work differently. If you use your virtues, if you pass it on, give it more, it increases. So pass on the experiences that you have and it will increase. Om Shanti. तुम शिव शक्ति हो, तुम शिव शक्तियाँ हो, उछल मारने वाले. बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए. इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती. बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे हैं. वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर को हर एक के ऊपर नज़र पड़े. So now we understand the secret.
क्लास में नंबरवार बैठ नहीं सकते, बच्चे मुखड़ा देखने की प्यासे होते हैं ना, वैसे ही बाप भी प्यासा रहता है, बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं. So Baba is saying that during the Murli, Baba would like to see each and every student in front of him. So are you able to feel that God is seeing you study right now? जी. तुम बच्चे सोचना करने वाले हो. You children are the one to lighten up. भारत में तो क्या सारी दुनिया में सोचा करने वाले हो. You are the ones who will bring light into the whole world, not just Bharat. गीत बजा है माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विदाता. ओम शांति. यह गीत भी तुम्हारे शास्त्र है ना, यह गीत भी तुम्हारे शस्त्र है. सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि इसमें से ही निकले हैं. वंडर है ना कि मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं. शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं. हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है, उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल जाता है. तो बाबा सिंह शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है. भारत में जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है. सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है, वहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं. सो इन थाईलैंड इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ ब्रह्मा, and it's only in Thailand and some places in Indonesia where we have so many Brahma's temple, but India is just the richest one. So Baba is saying ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, सारसिद्ध और पुखरी. पुष्करणी. जो पुष्कर में रहने वाले को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को यह थोड़ी ही पता है. कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं. जगत अम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते. किसको धन बहुत मिलता है तो समझते हैं साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते. बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते, because nobody has the power to do so. Then Baba is saying हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं. अगर यह सन्यासी पवित्र न होते तो भारत जल मरता. So the father is praising the saints and sannyasis, because imagine if द्वापर के बाद अगर हमारी ग्रंथ पुराण सन्यासी गुरु आदि नहीं होते तो मनुष्य की मान्यता जल्दी ही नीचे चली जाती. Baba is also praising them. Baba is saying परंतु सद्गति दाता तो एक बाप ही है, मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर न सके. सद्गति in the sense showing the right path and taking on that path. So we are moving from Kalyug to Satyug. This upgradation can only be done from Shiv Parampita Paramatma. Then Baba is saying बाबा ने समझाया है कि तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में. दुख में शोक तो होता है ना, बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा. बीमार पड़ेंगे तो ज़रूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे. ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े हैं और पड़े ही रहे. We'll think of getting better. Baba is saying पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाए, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते हो. अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ.
रिलीफ। माया रावण ने तुमको दुख दिया है, मुझे तो कहती है सृष्टि का रचयिता। तो imagine, now let's take a small example. If you as a parent had to create a world for your children, वो दुनिया कैसी होती? Imagine if you only had to create a home for your children. You would have created such a comfortable place where your child was happy. So God is the creator of this entire सृष्टि। सब कहती है भगवान ने दुख देने लिए सृष्टि रची है क्या? स्वर्ग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे, यहाँ दुख है। तब मनुष्य कहती है कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के सृष्टि की रचना की, और कोई काम ही नहीं था क्या? The reality is कि when we get sick, वो किसकी गलती होती है? आप अगर शारीरिक बीमारी भी हमें आई तो वो किसकी गलती होती है? डॉक्टर की। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स और लाइफस्टाइल। ऐसी जगह पर गए हो, उन लोगों से मिले हो जो शायद बीमार थे, तभी आपको बीमारी हुई। वैसे ही समय अनुसार ऐसी ऐसी कर्म हमने किए हैं जिसके आधार पर अब दुख हमें भोगना पड़ रहा है। परंतु बात कहती है यह सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है कर्म अनुसार। भारत पर ही खेल है राम और रावण का। Baba is using the word Bharat because Bharat is a avinashi khand, that land of Bharat always remains. It's never going down in the water, it's never getting destroyed. And that's why initially in Satyug all the khands were together. Australia wasn't there, all of them were just one piece of land. तो भारत की रावण से हार है, फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। So actually the remembrance in Ramayana is of Dilai Ram, the one who actually takes all of us Sita back to the land of the golden age. But then we put Lord Ram in that category. राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाग का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। So what is our father's inheritance? स्वर्ग की प्राप्ति। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग में तो देवता ही रहते हैं, स्वर्ग में तो देवता ही रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। बाबा सिंह स्वर्ग में तो देवता ही रहते हैं। And the inheritance of our father is heaven. So the word, if you take devta, it basically also means giver, जो देने वाले हैं, जो खुद complete है। So if I am the one who is a child of God, who has understood God and is the one who is to go in Satyug, मेरा व्यवहार अभी कैसे होना चाहिए? देने वाला। I am complete in myself. बाबा सिंह now एक गीत बजता है and then बाबा सिंह, भारत की सौभाग्य विधाता यह जगदम्बा ही है। जगदम्बा इन द सेंस द मदर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। उनको कोई जानते ही नहीं। अम्बा जी पर तो बहुत मनुष्य जानते होंगे, यह बाबा भी बहुत बार गया है। सो दिस टाइम शिव बाबा इज टॉकिंग अबाउट ब्रह्मा बाबा। बबुरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ भी पता नहीं था। कितना बेसमझ थे। अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है। अच्छा,
उस अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ और साथ में यह गीत ले जाओ। यह गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। What is Baba trying to say here is everywhere at this point, हर जगह लोग दुखी हैं and they're actually seeking answers, solutions. So ऐसी जगह पर जब आप दो शब्द सच्चाई से कहोगे, अपने अनुभव से कहोगे, तब उन्हें वो छुएगा और वो यूज़ भी कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम यह गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। So Baba was saying these murlis in the context of 1960s, you can consider, when mothers weren't given so much respect in the society, for they didn't have anything, any property, no work, fully dependent. And if a male were to preach even about dharma at that time, he would be opposed instantly. So that's why Baba used to keep the mothers in the front. Because if mother is talking even in the temples, nobody's going to instantly beat that person. Regardless, that also happened where people threw stones, but this was the purpose of keeping mothers always in the front. Then Baba is saying जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है, जगदम्बा को इतनी बुझाई क्यों दी है? So during bhakti we never thought about this, that why there are so many hands given to Jagadamba. Have you ever seen Jagadamba's temple? Baba is explaining क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं, शक्ति सेना है ना, तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखा दी हैं। शरीर कैसे दिखलाती? बाहें निशानी सहज हैं, शोभती भी हैं। So hands are always like the symbolism of helping. One head and many hands. टांगे दी तो पता ही नहीं कि कैसी शक्ल हो जाए। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाती हैं। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे न सके। तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए, अपना सौभाग्य बना लो। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आएंगे। तुम इतना नाम निकालेगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियाँ भी नहीं निकालती हैं। यह छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती हैं। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं, हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगी, उसके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्ट मोह होना है। So in Gita there is this shlok, nashto moha smriti labdha, and some say that is actually the essence of Gita, conquering your attachment and being in the smriti of that one. तो बाबा कहते हैं ये कन्याएं पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेगी। इसलिए इन भारत we are still worshipping young Kumaris and Kanyas. And Baba says कुमारियों ने रंग बिरंगी माया से बचना है। अगर रंग बिरंगी माया लग जाती है, इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई हैं, उन्हों को मर्तबा मिला है अल्फ काल के लिए, मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो। संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर देवी जन्म मिलेगा। So Baba is trying to tell the importance of this birth. This is the diamond birth. इस जन्म में हम नर से नारायण भी बन सकते हैं और उल्टा भी जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं
उन्हों को तो है अल्पकाल का सुख, उसमें भी कितनी फर्क रहती है। हम तो है गुप्त, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वह शो करती हैं। यह राज्य तो रुण्य के पानी मिसल है, मृत मृत समान। सो बेसिकली शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। Basically here, the one that is doing more show is actually more empty inside. And whatever we see in the outer world, even if it is wrong, it is still celebrated. Even if it is wrong, it's still celebrated. So we are living in a very upside down world. यह जिसको राज्य समझते हैं, यह तो अभी खत्म हुआ कि हुआ। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे, अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी। कितना खून बहता है, क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? Some people say that हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, हमारे परिवार खुश है, बस यही स्वर्ग है। Baba is trying to make the children think, क्या यही नहीं दिल्ली नया भारत है, जहाँ एक घर खुश है तो 5 घर दुखी हैं, और उस घर में भी लोग अंदर में दुखी हैं एक दूसरे से। तो बाबा कहती है नया भारत तो परिस्थान था, अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन है। सो भारत इज गिवन द मिसाल ऑफ बीइंग द गोल्डन लैंड, सोने की चिड़िया। So it is a law of nature that whatever is at the highest point physically will reach its lowest point. तो भारत सोने की चिड़िया था, बहुत ही हाई वैल्यूज थे, उतना ही डिग्रेडेड फर्स्ट भारत ही होता है। That's how vicious भारत also becomes. तो भारत जिसको हम रिलीजियस लैंड कहती हैं, उसमें इररिलीजियसनेस भी बहुत ज़्यादा है। लोग भगवान का नाम लेकर झूठ भी बोलते हैं। एटलीस्ट फॉरेन में वो सीधा कहेंगे कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता हूँ एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव। बट इन भारत इट्स अ लिटिल डिफरेंट। नाउ यू कैन सी इट्स प्रोग्रेसिंग अपवर्ड्स। इंडियाज नेम चेंज टू भारत, पीएम मोदी अनाउंस्ड इट। ओके, तो बाबा आगे कहती है तुम जानते हो रावण कब आता है, जब दिन पूरा हो, रात हुई तो रावण आ गया। दिन यानी सत्युग त्रेता पूरा हुआ, we entered into body consciousness and that's why Ravan came. What is Ravan? Ravan is basically the Panch Vikar and the Panch Tattva Bhoot. That's why Ravan has shown 10 heads. And these Panch Bhoot, the 5 vices and the Panch Tattva, they control us when we are in body consciousness. And they control our behavior. That's why they are called as Ravan. जिसको वाम मार्ग कहा जाता है, दिखाती भी है वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेगा। So whoever is able to experience awakening, only that soul can actually enlighten the light of somebody else. बाबा तो शुभ चिंतक हैं, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ न लगे, बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगदम्बा को भी ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। The soul of Jagadamba is the same soul that plays the role of Sri Lakshmi. But if you see even in Bhakti, the kalash of knowledge, कलश को हम क्या कहेंगे, urn of knowledge is given to Jagadamba, because it is now in Kali Yuga where knowledge is useful to everyone when people are seeking, because सतयुग में तो हर कोई कंटेंट होगा, वहाँ नॉलेज की क्या दरकार, वहाँ that with that time we'll be experiencing the fruit of our knowledge.
but it is now in the time of need where we have to use the knowledge. So Baba is saying, लक्ष्मी को तो धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहाँ तो यानी सतयुग में तो दान आदि होता नहीं। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। तो अभी आपके हिसाब से गरीब कहाँ है? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, where are we finding people in their very needy state? Is it, do you think it will be in heaven or in now? Now. So Baba is saying, तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करें तो बहुत आएंगे, शाबाशी भी देंगे, पाँव भी पड़ेंगे. Normally when somebody feels that they have attained something from somebody, they often out of respect they're touching the feet. माताओं का रिगार्ड भी है. माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगी. पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना. Baba is why focusing on माताओं and कन्याएं at this point of time was where because men, the souls that are playing the role of men, had this intoxication of being in power, having a position, having a job, having responsibilities. So at that time they used to say, we don't have time to think of this. We think of this, what will happen to the world, how will it will function, how will our plan go ahead, all of these things. Right now this principle, this way of thinking is for both men and women. We all are equal in the society today. But Baba is saying, बाबा ने समझाया है, यह साकार है ब्राह्मणी, यह साकार है बाहर यामी. So now Baba is talking about the one who is speaking. Sakar means the one who is in the corporeal form. So that time it was the body of Brahma. So he's saying this Sakar is Bharyami. इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड. श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना. हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वह परमात्मा है. उनको यह मकान दिया गया है. So Baba is saying that he has been given this body on rent. If God wanted, he could have chosen any young body that doesn't have any, how do you say, pain, or why choose a old 70-year-old grandfather's body? Baba is saying, तो यह लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड दोनों हैं. He is giving himself this title, Shiv Baba, that he is the landlady and the landlord. यह मेल भी है तो फीमेल भी है. वंडर है ना. भोग लग रहा है. अच्छा, बाबा को सभी को याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को. यह एक रस्म रिवाज है. जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत भलाएंगे. अच्छा, बाबा बहुत बहलाएंगे. आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. प्यारे बाबा नमस्ते. This was one thing I found very interesting, where God himself is saying मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे. The word sikilade means long lost and now found. So I was saying, and now we have a Ratri class as well, which is dated 8th April 1968. Baba is saying here, यह ईश्वरीय मिशन चल रही है. जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही जाएंगे. जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की,
जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं. So the Christian missionary, they provide for the families and then they convert. I was talking to that. भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते. यहाँ करप्शन बहुत है. बीच में रिश्वत न ले तो नौकरी से ही जवाब दो भेजते हैं. So some people who are forced to take bribe, if they don't take bribe, they lose their job. बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें. So some children that are in such posts, they are asking Baba what to do. Baba is saying, कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना. Because how we earn money, जैसा हम धन कमाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर होता है. जहाँ हमारा धन जाएगा वहाँ हमारा पहले मन जाएगा, फिर तन जाएगा. So the intention, the way it's being earned, all of that is very important as well. फिर आगे कहती हैं, यह सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ. बाप ज़रूर घर ले जाएंगे. बाप ज़रूर घर ले जाएंगे ना. घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए. भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं. उनका आना ही संगम पर होता है. तो हमने कल जाना था संगम या परसों. व्हाट इज संगम? संगम वो डायमंड युग है एक तो जिसमें परमात्मा आते हैं और बच्चों से मिलते हैं. एंड इफ यू से स्पिरिचुअली संगम मीन्स द मीट. या द मीट बिटवीन, हाँ, द मीट बिटवीन द टू एजेस, कलयुग एंड सतयुग. दैट्स अ संगम. एंड द मीट बिटवीन द सोल एंड सुप्रीम सोल. अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने लिए. Now the Father has come to make me into a worship-worthy deity. सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना मनुष्य से देवता किए करतर लागे वार. देवताओं, so in Sikhism, in their Guru Granth Sahib, there's a saying कि it doesn't take time for a human to turn into a deity when Sadguru mila dalal. When the Sadguru, the Supreme Soul, is your dalal. So देवताओं की महिमा है ना. देवताएं रहते ही हैं सतयुग में, अभी है कलयुग. बाप भी संगम पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देती. देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूछते हैं. जिसकी पूजा करते हैं वह ज़रूर कभी थे, अभी नहीं है. समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त. कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं. कैसे विश्व के मालिक बनते हैं? Now in the current time when we learn how to rule our inner kingdom, हम जब स्वयं के मालिक बन पाएंगे तभी आत्मा में वो संस्कार होंगे जो एक पूरी सृष्टि के मालिक बनने की योग्य होंगे. भक्ती करायला पाहिजे ना. नाही, बाबा काय म्हणत आहेत की जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या शरीराला त्याचे मालिक बनू शकता, त्याचे राज्य बनू शकता. अगर आपको जो चीज़ नहीं देखनी है वो नहीं देखनी है. कुछ देखते हुए भी अगर बुरे विचार नहीं आने चाहिए मन में, तो आपने मन पर इतना काबू कर लिया, तो इसलिए फिर वैसे मालिकपन के संस्कार जब आएंगे तब हम विश्व के मालिक बनेंगे. और ये सारा गुप्त
है. So basically that's why even a person who has no wealth, जो ऑटो रिक्शा वाली है, गरीब है, वो भी परमात्मा के लिए सब समान है, उनका भी इक्वली अधिकार है. And Baba says that the one who has nothing is the one who has more chance to get the बादशाही. इसलिए सुदामा का भी मिसाल है कि सुदामा के वो चावल भी जिसने दिए उसमें सोने का महल मिला. भले उसमें भी इंटेंशन अलग थी छुपाने की, बट फिर भी तुम जानती हो हम पढ़कर यह बनती है, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है. Normally when we go to school, for example somebody goes to medical school, why are they going there? To become a doctor. But even in a medical school there's different specialists. Likewise this is also a spiritual school, and our aim objective is to become a devta. So the model of Satyug is that picture you can see where you say we're here to become that Lakshmi and Rani. We used to worship those, and you know what is a true form of worshipping someone is to become like them. We worship our parents, like in our olden days we used to worship our parents, but the motto was that we imbibe such nature just like them, उनके जैसे कार्य कर पाए. Likewise, so Baba is saying तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है. बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे. So God himself is saying, परमात्मा स्वयं कह रहा है कि हे बच्चे मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूँ. फिर दैवी गुण भी चाहिए. Yesterday we saw, right? दैवी गुण was the third pillar in the 4 pillars of Raj Yoga. अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. So dharana basically means something that Baba, the Supreme Soul, wants I, the soul, to imbibe. पहला, इस दुनिया में अपना भारी शो नहीं करना है. संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है. दूसरा, इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है. नष्ट मोहा बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है. सबका सौभाग्य जगाना है. I'll just repeat the 2 धारणाs again. पहला, इस दुनिया में अपना भारी शो नहीं करना है. गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है. इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है. नष्ट मोह बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है. सबका सौभाग्य जगाना है. सब में आपके परिवार भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, और वो लोग भी आते हैं जिससे शायद आप भूल गए हो, मिले नहीं हो. एवरीवन. वरदान. वरदान, सो ब्लेसिंग बेसिकली मीन्स दैट अगर आपको किसी कोई वरदान दे दी, इट बिकम्स ईजी फॉर यू. द पर्पस ऑफ हैविंग अ वरदान का महत्व ये है कि वो आपका कार्य ईजी कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कथा में भी हम सुनते हैं किसी को वरदान मिल जाता है कि युद्ध नीति कौशल भव. सो दैट बिकम्स अ वरदान. युद्ध नीति बिकम्स वेरी ईजी फॉर दैट पर्सन. लाइकवाइज परमात्मा हम बच्चों को रोज़ एक वरदान देते हैं. तो जब आप ये सुने तो ये दिल में ये हो कि बाबा मुझे कह रही है, मेरे लिए कह रही है. बाबा कहती है, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाली इच्छा मुक्त भव. दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाली इच्छा मुक्त भव. जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं. उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता है.
क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होने वाला है वह भी बहुत वाह वाह। तीनों की काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। And then the slogan is, संस्कारों को ऐसा शीतल बनाओ, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जैसा वह रोग के संस्कार इमर्ज ही ना हो। Make your sanskar so cool that the sanskar of robe, in the sense pride, arrogance, ego. ego doesn't emerge. Om Shanti. So we can take 2 minutes in silence.